Hello everyone, my name is Bahadur Mori and I am an English and SS teacher in Sahajanan English Medium School at Natyajuna, and today I am taking Social Science Standard 8 Chapter number 4, Part 1, right. How the traders become rulers. See, in the previous chapter we already talked about British, how to came British in India, right. I just want to recall you some few things about the first chapter. Arrival of European, right. How the European arrive in India, that we already talked about it. We know that how they become a traders and about they expand these rules and territories and all that. Vasco da Gama, Christopher Columbus, right, Bartholomew, all the names related to history we already talked about it. Now we just go to the further. What happened next? When the European arrived in India, right, they settled down here, they start the trading, they got the permission from the emperor. And what happened next? This is story about this, right? So very interesting chapter this one, student. So welcome once again in this our portal, Southern English Medium School. Right. So I'm going to read every line and explain try to explain in a very easy way to about history. History is always very interesting topic for everyone. Right. So please listen very carefully. Use your hands free. Right. During this video. So much better for the sound quality. Right. So let's start without any further ado. I will start the video. ओके सो हाउ द ट्रेडर्स बिकम रूलर्स. इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे, वो बिजनेसमैन से, व्यापारी से वो शासक कैसे बन गए. हाउ द, क्योंकि किसी भी चैप्टर का टॉपिक होता है वो हमें समझने की बहुत ज़रूरत होती है. वी हैव टू नो अबाउट द व्हाट द टॉपिक ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर. हाउ द ट्रेडर्स बिकम रूलर्स. जो रूलर है वो किस तरह ट्रेडर थे. ट्रेडर का वी नो दैट ब्रिटिशर कैम टू इंडिया फॉर अ ट्रेडिंग, राइट. ब्रिटिश थे, फ्रेंच थे, जो भी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है, ईस्ट इंडिया फ्रेंच कंपनी जो भी थी, वो जस्ट कैम टू इंडिया फॉर एज ए बिजनेस, एज ए ट्रेडर. बट आफ्टर द दे नो दैट, आफ्टर द दे न्यू दैट हियर वी कैन नॉट ओनली ट्रेडिंग बट वी कैन ऑल्सो रूल, right, because of at the time India facing the many problems, was facing many problems, and that internal and caste and creed and orthodox kind of mentality, and his ruling kings are not very short sighted. They were. So these things all the British know that and knew that time. Okay, not only trade but we can also rule, and we can also rule over India. सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. बिजनेसमैन किस तरह से राजा बन गया वो हम देखते हैं, ठीक है. हियर द मैप ऑफ द पिक्चर ऑफ द ब्रिटिश रूल. यू कैन सी द डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट अवर ईयर. यहाँ पे अलग अलग साल और रंग है. इन 1798 में कहाँ पे ब्रिटिशर का जो एस्टाब्लिश था, उसकी जो टेरिटरी थी, उसका रूल था, वो पूरे मैप में आप देख सकते हैं. बिहार, बंगाल, आसाम, मद्रास यानी तमिलनाडु के आसपास का इलाका है, केरल में है, ठीक है, कर्नाटक के में है, ठीक है, तमिलनाडु में है. तो सब आप देख सकते हैं. और उसके बाद सीधे 1805 में अगर 1805 में देखते हैं तो थोड़ा और बढ़ गया. और फिर उसके बाद 1836 में देखते हैं तो थोड़ा और बढ़ा. और फाइनली 1856 में काफ़ी कवर हो चुका है, ठीक है. So this is story really very informative story. It's a chapter is an informative chapter, right? So now student please listen very carefully. I'm going to read every line. Start the story from over here. The children were engrossed in reading the story of two cats and monkey during the recess. देखो, engrossed that means he very attentionally, काफ़ी कॉन्सेंट्रेट से, काफ़ी इंटरेस्ट से वो चिल्ड्रन था, वो रीडिंग द स्टोरी अबाउट टू कैट्स एंड मंकी. ही जस्ट रीडिंग द स्टोरी अबाउट टू कैट्स एंड मंकी वेरी इंटरेस्टिंगली during the recess time, right. On reading this story, when he was reading a story, Joy and Mitali were making fun of each other. When the one children were reading this story at that time, Joy and Mitali, one of the character who were making a fun of each other. They are fun of each other, joking and masti and all that. Their class teacher who was sitting beside them
क्लास टीचर एग्जैक्ट सिटिंग बिसाइड दैम एंड सेड चिल्ड्रन दिस टू इज़ अ पॉलिसी। ये जो है जो टू है ये पॉलिसी एक सिद्धांत है। द थर्ड पार्टी टेक्स एडवांटेज ऑफ अ क्वारल बिटवीन द टू। देखो ये एडवांटेज ये है कि जो दो लोगों के झगड़े के बीच में कोई तीसरा अगर कोई बेनिफिट ले जाए उसको वो स्टोरी उसके बाद में है। आपने सुनी होगी कि दो बिल्ली के बीच में एक बंदर किस तरह से रोटी को ले जाता है, ठीक है। तो ये इसी तरह से कुछ हमारे साथ भी हुआ। इंटरनल अफेयर्स की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से ब्रिटिशर take the rules from our hand. So the British here the third party takes advantage of a quarrel between the two. The British had expanded their empire in India with such a policy. देखो इंडिया ने इसी तरह से अपना इसी पॉलिसी की वजह से डिवाइड एंड रूल्स और इसी सिद्धांत के ऊपर से उन्होंने अपना राज्य को फैलाया। तो इसी बात को लेकर जय ने आस्क किया, जय ने पूछा, जय आस्क सर हाउ इज़ दैट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। जय आस्क टू टीचर हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये किस तरह से हो सकता है। द क्लास टीचर रिप्लाइड लेट अस गो टू क्लास एंड देयर आई विल एक्सप्लेन अबाउट हाउ द ब्रिटिश कम टू इंडिया एंड एस्टेब्लिश देयर रूल ओवर द इंडिया। क्लास टीचर ने बोला कि चलो भाई हम क्लास में देखते हैं, जाते हैं किस तरह से ब्रिटिश सर ने हमारे इंडिया के ऊपर किस तरह से शासन किया, किस तरह से रूल किया। वो पूरी स्टोरी बताने के लिए टीचर क्लास में बच्चों को बोलती है जाने के लिए। बाय द मिड ऑफ 18th अभी स्टोरी स्टार्ट होती है। टीचर स्टार्ट द स्टोरी अबाउट द किस तरह से दो बिल्ली की जो स्टोरी थी वो कैसे इंस्पायर कर गई इंडिया में, कैसे एप्लीकेबल होती है इंडिया में, वो टीचर बताना चाहते हैं। किस तरह से ब्रिटिश सर ने हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से किस तरह से रूल ओवर द इंडिया किया, ठीक है, वो देखते हैं। बाय द मिड ऑफ 18th सेंचुरी के मिड में द ब्रिटिशर हैड स्टार्टेड टू इमर्ज एज ए स्ट्रॉन्ग पावर ऑन द इंडियन पॉलिटिकल होरिजन्स। 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर गॉट द इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग पावर ऑन इंडियन political horizons. Do you know that the British came to India only for a trade? Yes, right. British only came for the trading to India, that we know. Initially, in the starting of period, they took the permission to trade in Indian state. When he reached to India, right? At the time, they took the permission for a trading. They explained the details. We just came to here for only trading, nothing else, and they started the trading. Then हाउ डिड दे बिकम द रूलर ऑफ एंटायर इंडिया, वो उसके बाद वो किस तरह से पूरे इंडिया का शासक बन गए, वो देखने वाली चीज़ है। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल arouses many such question, arise in mind many question to solve their economics interest, and they increase their political hold on India with the use of British diplomatic tactic. देखो डिप्लोमेटिक टैक्टिक का मतलब होता है युक्ति, आइडियाज़। तो उन लोगों ने किस तरह से आइडिया लगाया, किस तरह से उन्होंने युक्ति की, तो जिस इंडिया को हम पूरी तरह से स्लेव कर सकें। तो ये जो स्टोरी है दिस इज़ अबाउट दैट। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट हियर द थिंग, आई जस्ट वांट टू रीड इट। इफ टुडे फॉरेन कंपनीज कम फॉर ट्रेड इन इंडिया, कैन दे एस्टैब्लिश देयर पावर? It's a think yourself. No, it's can't. How? Because now India is free country, है ना। India आज़ाद मुल्क है। Now India is a free country and India have a own constitution, law and rules and regulation, and Indian people who running the country and who rule on the country. We have a democratic system, right? And there's many rules and regulations. We have awareness. Now we have education. We know the importance of the freedoms. Right, so we already make the law and rules and regulation. There are very very difficult to defend our rules and regulation. So it's a good thing. Right now, no one can come to power. No one can come to power from other countries. No one can come to power. So because of our rules and regulation, our constitutions and our law policy. So it's a good thing. Now. स्टोरी अबाउट किस तरह से ब्रिटिश सर ने हमारे इंडिया पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया, वो देखने वाली चीज़ है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और
जो लोग बिजनेस के लिए आते हैं और वो किस तरह से दे कन्वर्ट इनटू द रूलर, तो वो सारी चीज़ें जानने की टैक्टिक, वो कौन सी टैक्टिक है दे यूज्ड, एंड देन हाउ द वेरी प्रोसियस वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री कन्वर्ट इनटू द वेरी इन अ स्लेव कंट्री, वे इनटू द वेरी पुअर कंट्री। इस तरह से पूरी तरह से ये डेवलप कंट्री कोलैप्स हो गई। देखते हैं नाउ फर्स्ट पॉइंट इज दैट वेलेस्लीज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। तो वेलेस्ली की पॉलिसी थी एक्सपेंस करने के लिए, उसके बारे में डिटेल्स है। वेलेस्ली ब्रिटिश ऑफिसर है, क्या है डिटेल हम देखते हैं। When Wellesley came to India as the Governor General, right? Colonel General Wellesley. When the Wellesley came to India as a Governor General, जब Wellesley Governor General की हैसियत से इंडिया में आए, कट थ्रोट competition existed between England and France. Please make sure that when the Wellesley came to India as a governor, तो कट थ्रोट that means एकदम बाहरी competition था ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में। It was necessary to check France from the becoming powerful in India so as to expand the British rule in India. Wellesley introduced a new plan which was known as the subsidiary alliance. सहायक कारक नीति बोलते हैं उसको। Please underline who introduced the subsidiary alliance. Wellesley. Underline from over here. Wellesley introduced a new plan which was known as the subsidiary alliance. So who was the introduction subsidiary alliance? Wellesley. When the Wellesley entered into the India, when the Wellesley came to India, at that time, in the cut-throat competition exists between French and England. So for that, they want to just remove to French who and how condition. That's why they introduced the subsidiary lines. As per the scheme, okay. Sorry for interrupt. So where we are, when the Wellesley came to India as the Governor General, cut-throat competition exists between England and France. It was necessary to check France from the becoming powerful. It's necessary to check France. That means he want to it's compulsory to that उसको हराना ही होगा अगर हमें powerful बनना है तो। In India, so as a extend the British rule, उसी की वजह इंडिया में British rule extend हो सकता है। तो that's why Wellesley introduced a new plan which was known as a subsidiary alliance. सहायक कारक नीति बोलते हैं subsidiary alliance. As per the scheme, any princely state that accepted what is subsidiary alliance? This is your answer. Any princely state except the alliance had to keep and maintain the British army as well as keep a British representative in the royal court. Please underline this one. However, the princely state were not allowed to be utilize the army at their own will. This system, which made the many feel secure in the beginning and made them feel unsettled and threatened. यहाँ तक अंडरलाइन करो। देखो ये पॉलिसी बहुत देखो what exactly this policy I want to explain in a very easy way. समझो इसको। देखो क्या किया, subsidiary alliance introduced by the Wellesley. तो एज पर द स्कीम, जो स्कीम के हिसाब से है, तो एनी प्रिंसली स्टेट, जो भी प्रिंसली स्टेट होगा, रजवाड़ा जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी जो भी प्रिंसली स्टेट होगा उसको ये जो भी प्रिंसली उसको एक्सेप्ट करता है दिस अलायंस हैड टू कीप, उसको क्या करना पड़ता है, हैड टू कीप मेंटेन द ब्रिटिश आर्मी, उसको ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरी बात है एज वेल एज कीप अ ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव इन द रॉयल कोर्ट, उनकी जो रॉयल कोर्ट होगी, जो प्रिंसली स्टेट की जो अपनी कोर्ट होती है, अपने जो मीटिंग्स होता है, अपने जो मिनिस्टर्स होता है, उसके अंदर एज अ टॉप ऑफ द लेवल उसको ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉय को उसको रखना पड़ेगा। दो चीज़, एक तो ब्रिटिश के आर्मी को मेंटेन करो और अपने ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव को भी उसके अंदर जगह दो अपने रॉयल कोर्ट के अंदर। देन द प्रिंसली स्टेट वर नॉट अलाउड टू यूटिलाइज द आर्मी। देखो एट देयर ऑन विल, प्रिंसली स्टेट है वो अपने हिसाब से अपनी आर्मी को यूज़ नहीं कर सकता अपने स्टेट में विदाउट टेक द परमिशन फ्रॉम ब्रिटिशर की परमिशन के बिना वो अपने आर्मी का भी यूज़ नहीं कर सकता वो चीज़। दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम थी, द प्रिंसली स्टेट वर नॉट अलाउड टू यूटिलाइज द आर्मी एट द ऑन विल, दिस सिस्टम विच मेड मैनी फील सिक्योर इन द बिगिनिंग। ये जो स्कीम थी वो स्टार्टिंग में प्रिंसली स्टेट वालों को लगा कि ये तो बहुत अच्छी स्कीम है, ये उनको लगा सिक्योर है, दूसरे राज्य वाले हमारे पे अटैक नहीं कर सकते, हमारे पास ब्रिटिश की फौज है, टैलेंट है,
स्टार्टिंग में लगा कि हम बहुत सेफ है, हम तो राज करेंगे और पूरा सब कुछ ब्रिटिश संभालेंगे, तो इन द बिगिनिंग दे फील दैट इट्स अ गुड थिंग, बट बाद में मेड देम फील अनसेल, उसके बाद में धीरे धीरे उसको लगा कि भैया हम तो गुलाम हो चुके हैं, एंड थ्रीटेंड, फिर उसको डर भी लगने लगा, दे आर द थ्रीटेंड बिकॉज दे अंडर द कवर ब्रिटिश, दे डोंट नो हाउ इट इज पॉसिबल एंड ब्रिटिश डू दिस. Now subsidiary alliance accept like slow poison. Please underline this one. Subsidiary alliance acted like a slow poison for the princely state of India. Please underline. Subsidiary alliance है वो slow poison है, धीमा जहर बोलते हैं, धीरे धीरे उसने मार डाला इंडियन के princely state को. The Indian state that become the victim of subsidiary alliance were, which are the state who victim जो उसके शिकार बने, कौन कौन से state थे? अलायंस हुआ हैदराबाद, मैसूर, अयोध्या, जोधपुर, गायकवाड़ ऑफ वडोदरा, पेशवान ऑफ पुणे एंड सिंधियाज ऑफ ग्वालियर. ये जो स्टेट थे वो पूरे स्टेट विच आर द विक्टिम ऑफ सब्सिडरी अलायंस. सो प्लीज अंडरलाइन विच आर द स्टेट ऑफ सब्सिडरी अलायंस विक्टिम. सो हैदराबाद, मैसूर, अयोध्या, जोधपुर, गायकवाड़ ऑफ वडोदरा, पेशवान ऑफ पुणे एंड सिंधिया ऑफ ग्वालियर. दीज आर द स्टेट हु विक्टिम ऑफ सब्सिडरी अलायंस. ठीक है. Then one more thing, Nizam of Hyderabad was the first victim of Wellesley subsidiary alliance. Please underline, Nizam of Hyderabad was the first victim of Wellesley subsidiary alliance. वो याद रखना जरा. Then it was a Mysore and Ayodhya. उसके बाद मैसूर अयोध्या की बारी आती है. और तांजोर एंड कर्नाटका met with the same fate. इसका भी तांजोर कर्नाटक का भी सेम फेट उसका हुआ, उसका नसीब में यही मिला. The British made the Marathas fight amongst themselves and consequently made them accept the subsidiary alliance. देखो ब्रिटिश ने क्या किया, made the Marathas fight amongst themselves. ब्रिटिश लोगों ने मराठा को अंदरों अंदर आपसी झगड़े में उलझा दिया और उसी के बेनिफिट की वजह से उन लोगों को इस तरह से गड़बड़ करते उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया. So they get the benefit and they ultimately British Marathas also accept the subsidiary alliance. Because at that time Maratha was very powerful in the Shivaji and all that, very powerful man at that time. तो उन लोगों को भी कॉम्प्लिक और टैक्टिक की वजह से पूरी तरह से उसको कन्वर्ट कर दिया और उसको भी सब्सिडियरी अलायंस में एक्सेप्ट करना पड़ा. Owing to the losses incurred by the Nizam in his fight with the Marathas, he was the first to accept this alliance. देखो कौन था, who was the first to accept the subsidiary alliance? The Nizam of Hyderabad, right? So owing to the losses incurred by Nizam in his fight with Marathas, ठीक है, निज़ाम जो मराठा की वजह से हार गए थे, ठीक है, मराठा के साथ हारे थे, तो ही वॉज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट हिज अलायंस. तो वो अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया सब्सिडियरी अलायंस, यानी कि ओविंग टू द लूजेस इनकर्ड बाय द मराठास, राइट. तो उन लोगों ने ये एक्सेप्ट करना पड़ा निज़ाम को, जो फर्स्ट विक्टिम बन गए. ठीक है. अकर दैट में द मीनिंग होता है, इनकर दैट में एक्वायर का मीनिंग होता है. ठीक है. ऑप्टेन, सॉरी, जस्ट बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक्स जस्ट लाइट वॉज गॉन. ओके. तो निज़ाम जो मराठा के सामने हार गया, तो दैट वाई दे एक्सेप्ट द अलायंस. एल्सो टिपू सुल्तान ऑफ मैसूर रिफ्यूज टू डू दिस. टिपू सुल्तान ने मना कर दिया. बट आफ्टर द ब्रिटिश विक्ट्री इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, मैसूर वॉज फोर्स टू बिकम अ सब्सिडियरी अलायंस एंड मराठा चीफ फॉट अमॉन्ग्स देमसेल्व्स आफ्टर द डेथ ऑफ नाना फडणवीस. देखो फिर उसके बाद टीपू सुल्तान उसको भी फोर्सफुली उसको एक्सेप्ट करना पड़ा, ये जो सब्सिडियरी अलायंस है. और उसके अंदर जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, मैसूर वॉज फोर्स टू बिकम, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में उन टीपू सुल्तान को फोर्सफुली सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट करना पड़ा. एंड देन मराठा चीफ फॉट अमॉन्ग्स देमसेल्व्स, उसके साथ वो फाइट किया था मराठा चीफ ने आफ्टर द डेथ ऑफ नाना फडणवीस. ठीक है. तो नाना फडणवीस के डेथ के बाद जो मराठा के जो चीफ थे वो अपने नाना फडणवीस के डेथ के बाद मराठाज लीडर्स थे वो इंटरनल फाइट करने लगे. वन बाय वन ऑल द मराठा स्टेट बिकम अ विक्टिम ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश. देखो मराठाज, ये ज़रा याद रखना, मराठाज के जो स्टेट थे वो स्लोली डिवाइड एंड रूल्स की पॉलिसी की वजह से वो सारे के सारे ब्रिटिश कंट्री में आ गए. क्या हुआ था? After the death of Nana Fadnavis,
तो मराठा चीफ फॉट अमोंग्स देमसेल्व्स, जो मराठा के जो चीफ थे अपने अंदरों अंदर वो आपसी में फाइट करने लगे और उसका बेनिफिट ले, और बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर use the tactic and use the divide and rule policy, and that's why the Maratha chiefs fought to among themselves and get the benefit. They ultimately all the benefit got to British, and they all the stayed under the Maratha stayed under the British, came to under British. So the other state, namely Ayodhya, Gorakhpur, Tanjore, Karnataka, Farrukhabad, also suffer the same fate. इन लोगों को भी सेम ही हुआ. इन दिस वे within a span of 7 years, 7 साल के अंदर, Wellesley expand the company rule and made the British the supreme power in India. 7 साल के अंदर वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस ने इंडिया में उसको पावरफुल बना दिया. सोचो, within 7 years they use the tactic mind right, divide and rules, subsidiary alliance, because they are educated, well talented people. They believe they are a foresighted people. That's why this thing happened. So here the picture of the battle fought by the Wellesley. These are the picture, like imaginary picture, battle fought by the Wellesley. Here is the picture of the Lord Wellesley, right, who introduced the subsidiary alliance. Now next is a expansion of the British rule India. ब्रिटिश रूल इंडिया का एक्सपेंशन कैसे हुआ वो देखते हैं इस पैराग्राफ में. After the finalizing the subsidiary alliance treaties with the Mysore, Nizam of the Hyderabad and Maratha chieftains, the British moved toward northern part of the India. देखो, आफ्टर द फाइनलाइज द सब्सिडरी अलायंस का पूरी तरह से एप्लीकेबल हो गया. उसके बाद जो ट्रीटीज़ थे, जो बंधन करते कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन की पॉलिसी थी, वो जो सब कुछ मैसूर के साथ हो गई. आफ्टर द फाइनलाइज सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी विथ मैसूर के साथ सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी थी, संधि बोलते हैं जिसको, वो हो गई. तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठा चिफ्टेंस द ब्रिटिश मूव टूवर्ड द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया. उसके बाद ब्रिटिशर थे वो मूव हुए नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया. यहाँ पे सब कुछ सेटल करके वो अब चलने लगे नॉर्थ पार्ट पे, नॉर्थन मूव टूवर्ड नॉर्थन साइड पे जाने लगे ऑफ इंडिया. दे एंटर इनटू द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विथ नेपाल. Right, they enter into a treaty of friendship with the Nepal and sensing a threat from it. After they entered with the Nepal and they tried to the convince to Nepal, and then they fought with Nepal and ultimately Nepal को भी अपने अंडर में ले लिया. And they fought many battles to secure the frontiers, right, and friendly relation with the Sikh king Maharaja Ranjit Singh. Please underline this one. Sikh king Maharaja Ranjit Singh, who has a friendly relation with the British, helped them to win the battle with the Afghans and establish their rule in the Sindh. Please underline this one. Full line underline. यहाँ से अंडरलाइन करो. द फोर्थ यहाँ से करो. द सिख किंग महाराजा रणजीत सिंह हेल्प दैम टू विन द बैटल विद द अफगान्स एंड एस्टैब्लिश देयर रूल इन सिंध. राइट, याद रखना है. द ब्रिटिश हैड एम्बिशियस टू कैप्चर द सिख किंगडम which was a powerful kingdom, but they could not do so as long as Maharaja Ranjit Singh was alive. ठीक है. सो मीनिंग इज़ दैट जब तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा थे तब तक ये सिख का जो रूल्स था वो कवर नहीं कर सकते, वो एक्वायर नहीं कर सके, क्योंकि जब तक राजा रणजीत सिंह जी जो थे, महाराजा रणजीत सिंह को जिंदा थे, तब तक वो ब्रिटिश सिख किंगडम को वो एक्वायर नहीं कर सके. ठीक है, कि उनकी नज़र पहले से उस पर थी. उसके साथ फ्रेंडली रिलेशन रखे क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह बहुत ही पावरफुल था. ठीक है, जब तक जिंदा रहे तब तक ब्रिटिशर उसके ऊपर हाथ नहीं लगा सके. दीज आर द पावर ऑफ दैट मैन. सो दे केप फैमिली रिलेशन विद द महाराजा रणजीत सिंह, जिसकी वजह से उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के साथ अच्छे से रिलेशन रखे. रणजीत सिंह वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ दैट टाइम. ही हैड सेट अप अ स्ट्रॉन्ग आर्मी विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन ऑफिसर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज स्टेट. Right, and he had attained the victories over many nearby state. After his death, Punjab suffered anarchy. देखो, ये पूरा डिटेल था महाराजा रणजीत सिंह के बारे में था. बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने अपने जो रूल्स और जो अपना किंगडम था वो एक्सटेंड किया था, अपनी जो टेरिटरी थी वो बढ़ाई थी.
और अपने किंगडम को पूरी तरह से प्रोटेक्ट रखा था। आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह जी, पंजाब फेल द सफर ऑफ एनआरसी, अराजकता फैल गई वहाँ पे, और उसी का फायदा लिया अंग्रेजों ने। देखो कैसे लिया, देखते हैं। गवर्नर जनरल सर हेनरी, प्लीज अंडरलाइन दिस वन, गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डिंस came to India and brought the Sikh rule completely under the British rule. Please underline. Who did the who did the bring Sikh rule under the British, right? तो ये आपका आंसर होगा, गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डिंग केम टू इंडिया एंड brought the Sikh rule completely under the British rule with policy of interference and annexations. ठीक है, ये जो पॉलिसी की वजह से यहाँ से अंडरलाइन करना, गवर्नर जनरल टू एनेक्जेशंस, ये इंटरफियरेंस एंड एनेक्जेशन पॉलिसी की वजह से गवर्नर जनरल सर हेनरी ने सिख रूल को पूरी तरह से अपने अंडर में ले लिया था, वो जरा याद रख लेना, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट, आई हैव टू पोस्ट दिस वीडियो ओवर हियर। वी विल गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम डेलहाउसी पॉलिसी ऑफ एनेक्जेशन, which this is one more new policies. One is subsidiary lines is played a very vital role to become a slave India, and second policy is annexation policy introduced by Dalhousie. We will teach about in the next part of this video. I hope you all got the point of this video, and I give my best try to explain you. So please stay home, stay safe, take care yourself, and the revision, underline the word, write and read more and more, that you can understand all things, right? So please take care yourself. The next part will be soon according to our timetable, right? Bye.